you are planning is in lot of important. pressure, एक डिजिट इधर से उधर होगा, आपका क्वेश्चन कॉस्ट करेगा. They should immediately buy those A8 size Notepads. notepads. रफ शीट का सही यूटिलाइजेशन क्या वाकई ही में स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है? इवन अगर आप लैपटॉप पे भी टेस्ट दे रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा माउस माउस दे लगा लो. में लास्ट 5-10 मिनट में आप ऐसे ही पैनिक होते हो. हाँ, उस समय अपने आप को ठंडा रखोगे तो 1 मिनट में भी क्वेश्चन होता है. देखिए, बार्क फॉर रिव्यू इज अ गुड ऑप्शन, स्पेशली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन. कैट के एग्जाम में हर चीज की प्लानिंग होती है, चाहे वो मॉक स्ट्रैटेजी हो, टाइम मैनेजमेंट हो या फिर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. बस एक चीज की प्लानिंग में हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं. दैट इज हाउ टू यूज द रफ शीट इफेक्टिवली. कई स्टूडेंट्स इतना लिख लेते हैं कि रफ शीट एक पजल बन जाती है और वहीं एग्जाम के बीच में क्लैरिटी के बजाय सिर्फ क्योस मिलता है. और यहाँ होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम. हम कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं बट हाउ टू यूज दैट रफ शीट वी डोंट प्रिपेयर फॉर दैट. एंड टुडे वील डिकोड दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर यू, what to write and what not to write in that rough sheet and how to use that rough sheet smartly. And to decode that, today we have with us yet again Mr. Darpan Dikshit sir, who has 20 plus years of experience in the CAT prep industry. So welcome again Darpan sir to Supergrads CAT Thank you YouTube so channel. much. Thank you so much. So to start off with my very first question, आपके हिसाब से जो ये रफ शीट का यूटिलाइजेशन है, शुड इट बी जस्ट फॉर डूइंग दैट रफ कैलकुलेशन या फिर ये एक तरीके से प्लान्ड तरीके से भी ले जाया जा सकता है इन द एग्जाम? Very valid question, and I think that has to be used very judiciously. ओके. CAT is one of the exam like where there are set of questions which you will be able to do in one go, and there are set of questions which you might not be able to do. टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, करेक्ट. Right. So while you are doing the LOD one question, you are quickly getting the answer of that. At times you stuck into several questions where you are not able to solve then and there. So you tend to leave that question. But in the end, you always have a time to come back to those questions. Now, if you have done your rough work neatly, you can again start from step 3 or step 4, wherever you have left that. Yes. If not, then what would have had happened? That you will start that process all over again. Yes. And if you are doing this in even 5 questions, you end up wasting 5 to 8 minutes. Okay, that much of loss is I think too much. Yes. Yeah. So, whenever you are using the paper, first we'll understand what size of sheet that they are going to give you. Yeah, okay. Generally, when you have a 1 A4 size paper, the photocopy paper that we see, half of that paper, they Okay. generally give you. We call it A8 और size. स्टूडेंट्स की तो हैबिट ही वो बड़े बड़े रजिस्टर्स sheet में होती में है. सॉल्व करने की रहती तो है. सबसे पहले आपको तो A8 शीट के बाजार में नोट पैड्स मिलते हैं विच कॉस्ट यू 5-7-8 रुपीज. वो खरीद लेने चाहिए अपने मॉक के लिए. ओके. तो इवन इन मॉक फ्रॉम नाउ ऑन you start solving your paper in that format notepad only. Okay. Solve it with pen because they give you pen. They don't give you pencil. Yes. So you can't reuse, erase it or anything. True. When you start practicing on that, don't write left to don't write from bottom to top or something like that. Use it nicely. And generally in these papers, there are no lines drawn. It's a plain paper. So now if you understand the notebook, now when you practice onto that, if you do the work neatly, you will never get confused. So yeah, because you are planning is in important. lot of pressure. True. एक डिजिट इधर से उधर होगा, आपका क्वेश्चन कॉस्ट करेगा. एंड इट इज नॉट जस्ट 3 marks you lost, 3 and -1. Yeah. So जिस क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिल सकते थे, अब you are 4 marks down. Okay. 3 what you were expecting and -1. So quantitative aptitude, it is very important on to those questions which demand certain type of
calculations Okay. or And sir, what little about difficult. the VARC section? Like VARC में ही हम start करते हैं. We start off with that. So is it VARC necessary? में the kind of paper that we have, like Hmm. reading comprehension or parajumble, I उसमें don't think तो there are जरूरत much नहीं. of use Yeah. of writing anything, which I myself has tested, बट and neither कई the बार ऐसा student होता है ना use कि that. क्वेश्चंस कुछ ऐसे ट्रिकी होते हैं ऑथर का पर्सपेक्टिव या वो जो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स वो वर्ड्स में स्टक हो जाते हैं दे ट्राई टू फाइंड सर्टेन थिंग्स इन पैसेज तो क्या फिर उस कंडीशन में भी In is it that you have an necessary? option of little highlighting that passage through the Yeah. mouse. That is हाँ. what you can do that, and that is how Okay, I actually think you that go is through another that. good strategy. So this is a way you can actually go ahead with that. Parajumbling में you need to scribble it a bit, 2, 1, 1, 2, whatever you will write at times. Yes. Or even in odd man out, you stuck into 2 options and then evaluating key 1, 3 and 5 is gone. Now I have to Now decide to out of 2 and 4. yeah. That is a very little amount of calculation. वो सिर्फ टीटा टीटा में ही Actual लगेगा. calculation and things are required when you are making a set of LR and DI. Yeah, true. So- Lot of diagrammatic things, statistical And- things. Especially in that, if you are doing and drawing it neatly, because set frame करने के बाद आपको 5 क्वेश्चन उसी पे सॉल्व करने हैं. Yeah. तो डेटा अगर आपने नीटली फ्रेम किया हुआ है Hmm. तो आपके लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चन को देखना. And that will save lot of your time, that will save lot of your stress, Okay. which is very very important to manage going ahead in the paper. So I advise all the student, like, always dedicate 1 page to one set, Okay. right? All Or 2, but that page has to be there. For an example, you have started with set 1, you are able to do it. You started with set 2, you could not do it, but आधा आपने कर लिया कर है. लिया सॉल्व. थर्ड करने के बाद, फिफ्थ करने के बाद आपको वापस आना है, तो अब वो आपका सेट 60% हुआ है. Now 60% because it is done, there are more chances even in the last 5 minutes you'll be able to solve that set. क्योंकि आपने मोस्ट परसेंटेज एक उसमें कर लिया शीट है में कर उस पे, लिया है और आपको वो दिख रहा है कहाँ पर लिखा Yes, हुआ है. So it is exactly like you have already have 60% of the solution of something. Yeah. You just have to solve 40%. 40%. But उस समय क्योंकि आपका brain stuck हो गया था, you move to the next Other question. Okay. So whenever you will frame neatly, it will definitely in your great advantage. And I advise students today itself, the moment they see this podcast, they should immediately buy those A8 size notepads. And don't buy the line ones. Yeah, the black Because then you will be in a habit, वहाँ पर आप फिर पैनिक होगे कि यहाँ तो lines नहीं है. हाँ. That is the way I think it should go ahead with that. Okay. All right. One more thing I would like to add in here. Suppose my strength is arithmetic or algebra, whatever the topic, in quantitative aptitude. Okay. If I am solving the question, मैं एक टेबल बना लेता हूँ कि I missed out on question 4. This is of TSD, time speed distance. Okay. तो whenever I will come back, मुझे पता है 4th question time speed distance का है. So instead of scrolling through every question, I will directly click on to the 4th question and time speed distance in front of me. Yeah. तो मैं जो जो क्वेश्चन छोड़ते जाता हूँ उसका नंबर डाल के एक डेडिकेटेड पेज पे टॉपिक लिखता जाता हूँ, अगर मैंने वो क्वेश्चन वहाँ सॉल्व नहीं किया है. सही बात तो इससे एक समरी मेरे पास हमेशा होती है कि अलजेब्रा के ये क्वेश्चन हैं, अरिथमेटिक के ये हैं, पीएनसीए है, नंबर्स का ये क्वेश्चन है. तो जब मैं वापस आ रहा होता हूँ क्वेश्चन पे, तब मेरा काफ़ी, और तब मैं पैनिक में होता हूँ क्योंकि लास्ट का 10 या 12 मिनट ही होता है जब मैं वापस आता हूँ. तो देयर आई थिंक इफ यू विल प्रैक्टिस दैट विल ग्रेटली हेल्प. Okay. All right. So as you mentioned, quant और DILR की 2 ही sections है जहाँ पे I think maximum utilization we'll do of the rough sheet. So how would you suggest to divide these sections? Because कई बार ऐसा होता है कि वो rough sheet भी शायद कम पड़ जाता है students को because they might scribble a lot, या फिर जैसा कि आपने कहा कि कई बार unplanned भी होती है if you're not doing it neatly. So like आप section wise कैसे इस चीज़ को divide करोगे? Like quant में specifically देखिए, या आप अगर DILR में? देखेंगे LRDI में आपके 5 सेट्स आते हैं, where most of the student end up doing 3 or 4. Yeah, true. मैं मान लेता हूँ आप 5 सेट भी सॉल्व करते हैं तो यू नीडेड 5 पेजेस, Okay. राइट? अगर आप नीटली काम कर रहे Neatly हो काम तो, कर रहे हो. वरना एक ही पेज को आप बार बार बार-बार करोगे, scribble गलत करोगे. सेट बना, आप वहीं पर करेक्ट करोगे तो आपको 5 से 6 पेजेस वहाँ चाहिए. Okay. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो इजियर क्वेश्चन होंगे वहाँ आपको बहुत कम लिखना होता है. देयर आर वेरी फ्यू लेंदी क्वेश्चंस इन कैट where you are writing every single thing. But it is not a board exam that you have to show the steps.
और जैसा आपने कहा कि क्यूए में क्योंकि आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में कम लिखना पड़ता है, यस तो क्या उस केस में फिर स्टूडेंट्स को ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज करना चाहिए? मतलब इज दैट अ वाइज डिसीजन? एंड दिस क्वेश्चन आल्सो इम्प्लाइज टू सम पार्ट्स ऑफ डीआईएलआर एज वेल, हाँ जहाँ पे हमें देखिए कैलकुलेट करना पड़ता आई है। विल सर्टेनली टॉक अबाउट द कैलकुलेशन. अब कैलकुलेशन में हर स्टूडेंट का ना एक अलग कंफर्ट है. ट्रू। एक बच्चा जो कैलकुलेशन में अच्छा है, हाँ। बचपन से उसको लगता है मैथ्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, हम्म, और उसने टीचर्स की क्लास में बात सुनी हुई है, क्योंकि पहली कुछ क्लासेस तो कैलकुलेशन ही होती हैं. हाँ, यहाँ आप टेबल्स याद करते हो, आप स्क्वायर्स याद करते हो, हम्म, आप परसेंटेज रेसिप्रोकल याद करते हो. करेक्ट। जो बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे हैं वो जज जल्दी कर पाते हैं कि किन क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेटर लगेगा, किन में नहीं लगेगा. ट्रू दैट। अगर क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है तो शायद आपको कैलकुलेटर नहीं लगेगा. लेकिन एक क्वेश्चन है जहाँ डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं अप टू 2 डिजिट्स, तो मैं एडवाइस यही करता हूँ बच्चों को, अगर ऐसा कुछ भी है, आपको क्वेश्चन आता है, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से आप गलत नहीं करो. इन दैट पर्टिकुलर केस आप बिल्कुल ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए यूज करो. बट कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन के लिए भी हम कैलकुलेटर जब यूज करते हैं तो कैट में जो कैलकुलेटर मिलता है वो लिटिल अनकंफर्टेबल है, बिकॉज इट इज नॉट टच स्क्रीन. कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट इज नॉट टच स्क्रीन. ट्रू। माउस से आपको एवरी सिंगल डिजिट पे क्लिक करना होता है, तब आंसर आता है, राइट. अब विच इज वर्थ इट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. ईजियर कैलकुलेशन के लिए तो मेरी एडवाइस स्टूडेंट को यही रहती है, भाई वर्क हार्ड ऑन योर कैलकुलेशन. इफ somebody is asking 5/18 और 45, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें स्पीड का कन्वर्जन आना चाहिए. तो उस केस में आई थिंक देन रफ शीट यूटिलाइजेशन वुड बी मोर बेटर देन यूजिंग अ कैलकुलेटर. एब्सोल्युटली दिस विल बी लिटिल बेटर, बिकॉज वो आपको आंसर पे जल्दी पहुंचाएगा. Because you're more in, I think, habitual of writing when you are practicing or when you're in your preparation mode, then clicking on the mouse again and again. I यस think यस that's वो the आपके कंसंट्रेशन को भी कई बार ब्रेक करता है. हाँ, हो सकता है. और कई बार हमें ऐसा होता है कि जो कैच सेंटर्स पे माउस मिलते हैं, डिवाइस मिलती हैं, दे आर नॉट दैट स्मूथ विच आर एट योर होम, बिकॉज घर पे जो आप यूज कर रहे हो बेस्ट ऑफ द थिंग्स यूज कर रहे हो. And many students तो even have habit laptops पे देने यस के यस box तो लैपटॉप वाला हाँ, माउस और इसमें हाँ, बहुत अंतर है. बहुत अंतर है. मैं तो हमेशा स्टूडेंट को अभी भी ये एडवाइस करता हूँ, इवन अगर आप लैपटॉप पे भी टेस्ट दे रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा माउस माउस ले लो लगा लो. हाँ, सही है. और माउस से करने की कोशिश करो. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें ही स्टूडेंट्स मिस आउट अ लॉट. यही तो है जो आपको 95 से 98, 98 से 99, 99 से 99.5 ले जाता है, कि आप माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल पे कितने अच्छे से काम करते हो. हाँ, आई थिंक इन द फाइनल डेज में यही चीजें ज्यादा Absolutely. इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कंटेंट तो बिल्ड हो ही गया है, एक सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट है, अब तो परफॉर्म की बारी है. एग्जाम माइंडसेट बिल्ड करना है. Absolutely, Yes. So one thing I have observed is that एक mark for review option भी होता है CAT में. I think a lot of students are quite unsure and unaware of that particular part. तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं मार्क फॉर रिव्यू, बट कई बार ऐसा होता है कि वो छूट जाता है, हम शायद रीविजिट नहीं करते उस क्वेश्चन को. तो क्या उसको भी फिर हमें जुडिशियसली वो रफ शीट में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके कैलकुलेट करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट ने ट्राई तो किया ही होगा, उससे नहीं बना होगा तभी उसने मार्क फॉर रिव्यू वहाँ पे मार्क किया हुआ है. तो शुड यू इन्वेस्ट योर टाइम अगैन ऑन दैट? देखिए, मार्क फॉर रिव्यू इज अ गुड ऑप्शन, स्पेशली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके. एक क्वेश्चन जो आपने आधा करके छोड़ा है, मार्क नहीं किया है, और एक आपने लगा तो दिया है बट आपने लिटिल गेस वर्क किया है उस पर. ओके. तो अगर आपने लिटिल गेस वर्क किया है और आप लास्ट में यू हैव 5 मिनट, तो आई ऑलवेज एडवाइज यू टू गो बैक टू दोज क्वेश्चन. अब आपने अगर मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया तो आप ढूंढोगे उसे, एंड दैट विल अगेन वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम. सो बेटर है यू मार्क फॉर रिव्यू. और नोटपैड को भी अच्छे से यूज करो. फर्स्ट पेज पे आप लिख लो कि आपने इतने कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो छोड़ा है वो क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है और आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू लगाया है. तो जैसे ही आप शीट देखोगे आपको पता होगा 7th दोबारा करना है, 9th दोबारा करना है, 13th करना है. तो आप इंस्टेड ऑफ juggling between all 22 question, quickly go on to the 7, 13 स्कैनिंग ईजी हो जाएगा. क्योंकि उस समय लास्ट 5-10 मिनट में आप ऐसे ही पैनिक होते हो. उस समय अपने आप को ठंडा रखोगे तो 1 मिनट में भी क्वेश्चन होता है. आखिरी 5 मिनट की वर्थ ये है कि 5 क्वेश्चन कर सकते हो. अगर पैनिक हो गए तो 5 मिनट में एक भी नहीं होगा आपसे.
सर बिफोर वी एंड दिस एपिसोड वन फाइनल क्वेश्चन, आपके हिसाब से क्या एक रफ शीट का सही यूटिलाइजेशन क्या वाकई ही में स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है? मतलब I'll take you a example of one of my student, ओके. and she was not even able to solve one set of DI, ओके. but she has designed her set very neatly. In the last 6 minutes of the paper, she was able to do 5 questions and all 5 were right, and she scored 85 percentile and cleared the cutoff of an IIM, and she is already studying in an IIM. दैट्स वंडरफुल. And first 24 minutes she had 0 attempt. ऑलराइट, दैट्स ह्यूज. This is the real thing that has happened with the kid. And 5 questions she did because she was able to prepare the set when she revisited the set. करेक्ट. So this is how about the temperament, this is about utilizing the sheet rightly. यस. आपके पास हर 5 मिनट में भी वापस आने का समय है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन को करने में 5 ही मिनट लगता है अगर वो आपको बन रहा है तो, और नहीं तो फिर आप यू कैन टेक फॉर एवर. बस यही है कि अभी जर्नी में जो ये सारी चीजें हैं, these minute things I that play a huge role on the would D-Day. strongly advise all the student to buy that A8 size notepad from the market. Any time, any day you are writing the mock, you make sure you write the mock with this, On that. and buy one mouse if you are writing the mock on the laptop. True that. And one more thing, not for the serious takers, but there are some student who would like to lie on a couch and want to write the mock. I advise them very strongly that sit on the table and a chair in the less ideal condition, and then only write the mock Plus as per your slot timings. as per your slot timing. Yeah, Yes. okay. कैट के एग्जाम में हर क्वेश्चन एक टेस्ट है, लेकिन असली टेस्ट वो होता है अपनी क्लैरिटी को मेंटेन करना. एंड वन सच क्लैरिटी टुडे दर्पण सर गेव अस वाज ऑन द राइट यूसेज ऑफ रफ शीट. सो अगर आज के इस एपिसोड ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर किया हो, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड राइट बिफोर योर कैट एग्जाम, दैट इज बिफोर 30th of November, then every insight that Darpan sir shared today will be really helpful for the D-Day. And as always, I say, for more such useful and informative content, don't forget to subscribe to Super Gradscat YouTube channel.